بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں فرمائیں. کسی نے قرات کی، کسی نے حمد کی، کسی نے مکالمہ کیا. بہت سارے بچوں نے بہت سارے پیارے انداز میں اللہ کی تعریف کو بیان کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان فرمایا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے مکاتب ہیں، یہ دین کے چراغ ہیں. دین کا چراغ چلتا ہے علم کی روشنی کے اعتبار سے، اور ہمارے سامنے جو ہے یہ گھڑی آ گئی ہے. میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا مفتی و قاضی اکرم صاحب دامت برکاتہم بڑے دور سے تشریف لائے ہیں. دعا فرمائے کہ ان کی باتیں ہم سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو میں کریں گے انشاءاللہ. ایک اور بار میں آپ لوگوں سے ادور گزارش کرتا ہوں کہ خاموش ہو جائیں اور خاموشی سے حضرت کا بڑا قیمتی بیان سنیں، اور ہم اس بات کو سن کر اس ارادے کریں کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے. ہماری یہ فکر ہے کہ ہر مرد مسجد کے ماحول سے جڑ جائے، ہماری خواتین تعلیم کے ماحول سے جڑ جائے اور ہر بچہ مکاتب سے جڑ جائے. اسی کے لیے جو ہے سارا نظام کیا گیا ہے. میں حضرت سے مخاطب کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی بیانات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا مشير له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له، أزلي عبدي عمدي دائمي. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسامنا وطبيب أرواحنا أولانا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پورے ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مرد حضرات سامنے آ کر بیٹھے ہیں. مرد حضرات سامنے آئے، قریب قریب آ کر بیٹھے ہیں. ان کا زیادہ حق ہوتا ہے. یہاں تو زیادہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. آؤ بھائی نیچے اترو، دین کی بات ہو رہی ہے، سامنے آ کر بیٹھو. کھڑے کھڑے باتیں نہ سنیں بلکہ آرام سے بیٹھ جائیں، قریب آ کر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. مجھے معلوم ہے کہ
کہ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. سب کا دل بیان کی طرف کم اس طرف زیادہ ہے. انشاءاللہ کھانا بھی کھائیں گے. جیسے جم کر بیٹھ کر بات سنی ہے انشاءاللہ جم کر کھائیں گے انشاءاللہ. ایک جگہ بہت بہترین دعوت تھی, بہترین بریانی بنائی گئی تھی. لوگ تڑپ رہے تھے بریانی کھانے کے لیے, مگر جب کھانے بیٹھے تو پتہ چلا بریانی میں نمک ہی نہیں ہے. ویسے ہی جلسے کے اندر مائک خراب ہو جائے تو پورا معاملہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے خصوصی اعتبار سے مائک والوں سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے. انشاءاللہ جلد بات ختم ہو جائے گی. پورے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تمام کو قبول فرمائے, اللہ تمام کے آنے کو قبول فرمائے. ایک لطیفہ ہے, ایک لطیفہ. 4 دوست تھے. 4 دوست شکار کے لیے گئے. شکار کے لیے گئے, کھانا پورا ختم ہو گیا. ایک آدمی کا کھانا بچا. اب کھانے والے 4, کھانا ایک آدمی کا. کیا کریں گے؟ پورے سوچنے لگے کیا کریں گے. اکلا کھائے تو پورے 3 جنے بھوکے رہتے ہیں, 3 جنے کھائے تو داڑھ کو بھی نہیں داغ کو بھی نہیں. کیا کریں گے؟ تو مشورہ ہوا. اب رات میں ویسے بھی سو جائیں گے, رات میں ہی ہے, سو جائیں گے. فجر میں اٹھنے کے بعد جو اچھا خواب دیکھتا انہیں کھانا کھانے کا. تو سب جانے کھانے کے شوق میں سو گئے. 4 جنے سو گئے. لیکن بہت زیادہ بھوک لگی تھی. مرغا بانگ دیتے اٹھ گیا انہیں. اٹھ کو سب کو اٹھانے لگا, بھائی اٹھو اٹھو, فجر ہوئی, اٹھو جلدی اٹھو. تو پورے اٹھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ آگے بھائی صبح ہو گئی, ابھی خواب بیان کرو, کسے کسے کیا کیا بشارت پڑا, بولو جلدی کھانا کھانا ہے. تو بعد میں ایک آدمی شروع کرا. بھوک اسے زیادہ لگی تھی. بھائی میں رات میں بشارت دیکھا, خواب دیکھا, اتنا اچھا خواب تھا کیا بتاؤں. بولے کیا دیکھا؟ بولے جیسے آنکھیں بند کرا پہلے آسمان کو, میں کانتا پہلے آسمان کو, جیسے ہی آنکھیں بند کرا دیکھا تو میں پہلے آسمان کو ہوں. کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں کی, کیا نظارہ. دنیا گول انڈے زر کی دکھ رہی. کیسی دکھ رہی دنیا؟ گول انڈے زر کی دکھ رہی, بہت بہترین. تو اکلا بولے تو کیا خواب دیکھا؟ میں تیرے سے اچھا دیکھا. کیا بولا؟ میں تیرے سے اچھا دیکھا. تو کیا دیکھا؟ تو پہلے آسمان کو تھا رہیں گا, میں تیسرے آسمان کو تھا گیا ہوں. کہتا گیا تیسرے آسمان کو. کہ تو اپنے خواب کو اچھا کر کو بتانا, بھوک لگی سب کو, کھانا کھانا ہے. تو میں تیسرے آسمان کو تھا. تیسرے آسمان کو سی دنیا کا نظارہ اتنا بہترین ہے, کیا بولنا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, جنت بھی وہاں سے قریب, وہ نظارہ چلتا تھا. اب تیسرا آدمی تھا, انہیں بولا تو کیا خواب دیکھا؟ انہیں بولا میں بھی خواب دیکھا. تو پہلے کو تھا رہیں گا, تو تیسرے کو ابھی نہیں سوچا. میں چوتھا بولا کہ تو انہیں 5واں بولتا. ابھی اس سے اچھا ہے کہ میں سب سے لاسٹ میں چلے جانا. تو پہلے پہنچا, انہیں تیسرے پہنچا, میں ڈائریکٹ 7ویں آسمان پہنچا گیا ہوں. کہاں تھا؟ 7ویں آسمان کے اوپر. وہاں جنت قریب میں, جنت کو بھی دیکھ ڈالا, دنیا کو بھی دیکھ ڈالا. کیا نظارہ وہاں سے, بہت اچھا خواب تھا. مجھے کھانا دے گیا انہیں. اب بھی اکلا باقی تھا. بولے انہیں بھی اب بھی باقی ہے, اسے بھی ذرا پوچھو انہیں کیا دیکھا. تینوں بولے بول بات تو کیا دیکھا خواب. انہیں چھوڑو کیا بولنا گیا, بول خواب دیکھا, کھانا کھانے کا ہے کیا تو بول. تو انہیں بولا کیا بھی خواب دیکھا نہیں کیا؟ تو بتا دیکھا مگر کیا بولنا, چھوڑو کیا. اگر بول با, بھوک لگی سب کو, کون تو اگلا کھانا کھانا. تو انہیں بولا کہتے ہیں سب جانے سوئے, میں بھی سویا. آنکھیں مجھتے ہی یہ لمبا آدمی میرے سامنے آیا, نیچے سے اوپر تک اجلا 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 بڑا, اور اس کے ہاتھ میں یہ لمبی تلوار, اتنی لمبی تلوار ہے, لے کو آیا میرے گردن کے اوپر رکھا. کیا ہوا اس کے بعد میں؟ بولا کھانا کھاتا کیا گردن مارو.
क्या कह रहा? खाना खाता है गर्दन वालों। पूरे तीनों बोले तो तू क्या करे बाप? अब वो इतना बड़ा आदमी तलवार गर्दन पर को खाता क्या नहीं तो क्या करना, खा लिया। सब जन सर को हाथ पकड़ को, अरे तेरा यहाँ हमना बुलाना नहीं कि हम ही बाजू कर देना, कितना बुलाना, अगला पहले आसमान को, अगला तीसरे आसमान को, अगला सातवें आसमान को। मेरी आवाज कहाँ तक जाती है? तो मेरे भाई बुजुर्गों और बहनों, माशाअल्लाह बच्चों ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में तकारीर की, नाते पाक सुनाई, नज़में सुनाई, मुकालिमे सुनाए, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर आकर खड़े होना बहुत बड़ी बात है। स्टेज पर, मेंबर पर, माइक के सामने अच्छों की पैन गीली हो जाती है। तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, हर कोई बोल नहीं सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बड़े हिम्मत से आए और खड़े रहे और अपने माफी ज़मीर को, उन्हें जो बताया गया, सिखाया गया, बड़े बेहतरीन अंदाज से माशाअल्लाह उन्होंने अदा किया। बड़ी खुशी हुई। आजकल के जो नौशवा हैं, चार लोगों में कबूल किया बोले तो डर जाते हैं। बोल बात पूरे दोस्ता चैन काजी साहब बोलते हैं क्या आपने फलां को अपने निके में कबूल किया? क्या रे बोलना सो के दाम नहीं। डेढ़ में पूछता, डेढ़ में आता बाजू, उसे पूछता क्या मैं बोलना सो, वो कबूल किया बोल बा, हाँ मैं कबूल किया के दाम में। उतने जाने बोलने के बाद में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थे बेहतरीन अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में अपने तासुरात, बल्कि अपने असातिज़ा ने, मुअल्लिमात ने जो उन्हें सिखाया वो बयान कर रहे थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे सिखाने वालों को और इन तमाम बच्चों को। अल्लाह तमाम बच्चों से दीन का काम ले, मरते दम तक दीन पर बाकी रखे और उनके वालिदैन के लिए नजात का जरिया बनाए, हिदायत का जरिया बनाए। अल्लाह इन तमाम को इनके उलूम में तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। आमीन तो बोलो कम से कम। मौलाना भूख कितनी लगी, क्या भी निकल रहा नहीं मुंह से। अभी खाली खाने जाओ गए तो बस है, छोड़ दो इंशाअल्लाह, थोड़ी देर और जरा मुझे बर्दाश्त कर लो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मैं सोच कर आया था, मगर जैसे बच्चों की तकारीर को मैंने सुना, मैंने अपना सोचा हुआ पीछे रखा, कहा कि बच्चों ने जो कुछ बयान किया है उसी को आप हज़रात के सामने मैं दोबारा बयान करूंगा, अलग अंदाज से इंशाअल्लाह। क्योंकि बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, दीन के एतबार से बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो उन्हीं बातों को मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। वैसे भी मेरा तो दिल चाह रहा था, जब मुझे फोन के जरिए से बताया गया इस्लाह माशरा के उन्वान पर आना है और एक प्रोग्राम है, मैं कहने वाला था कि भाई रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, सीरतुन नबी के नाम से बुलाओ, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना खास है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। रबी कहते हैं बहार को, और इसी महीने में दुनिया में बहार आई है। वो कैसी बहार? दुनिया अंधेरे में थी, रोशनी की बहार आई, जलालत में थी, इल्म की बहार आई, गुमराही में थी, हिदायत की बहार आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया का नक्शा चेंज हो गया, दुनिया का नक्शा चेंज हो गया। एक बच्चा जिहालत के वाक़ियात को सुना रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले के वाक़ियात को सुना रहा था। बड़े बेहतरीन अंदाज में चंद मिनट में उस बच्चे ने बहुत सारी बातें कह दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जात है जिनसे हम और आप क्या, जानवर भी मोहब्बत करते हैं, जानवर भी उन पर दरूद और सलाम भेजते हैं। हम और आप जानवर क्या, अल्लाह तबारक व तआला खुद उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान पाक के अंदर कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नहीं पुकारा, कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुद्दस्सिर कहा, नाम लेकर खुदा ने कभी पुकारा नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी जी आपके नाम को इतना ऊंचा किया जाएगा, इतना बुलंद किया जाएगा कि आपके नाम से आगे, आपके नाम के आगे किसी का नाम नहीं होगा, किसी का नाम नहीं होगा।
اور جو آپ سے محبت کرے گا اے نبی جی میں اس سے محبت کروں گا. جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے. ایک محبت کا واقعہ بتاتا ہوں. اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا میں آئے, جنت کے اندر تھے, بڑے مزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنایا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, پڑھا تو سمجھا نہیں, جس کی وجہ سے دین کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں ہم لوگ, دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. تو آدم علیہ السلام جنت میں تھے, آرام سے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا, مگر ایک تھا منحوس ابلیس جسے کہتے ہیں شیطان, وہ کہنے لگا آدم مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں کیوں اسے سجدہ کروں. اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. اب جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا تو ہمیشہ سوچنے لگا کہ اللہ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, میں آدم کو بھی جنت سے نکالوں گا. اور ہمیشہ فکر کرنے لگا, ہیلے بہانے بنانے لگا, آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا, مگر آدم علیہ السلام اس کے جھانسے میں آئے نہیں. تو پھر انہیں نشانہ بنایا ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو, جا کر بولے اماں تم نے معلوم کیا بابو, اللہ وہ جھاڑ کا پھل کئی کھونوں کو بولے معلوم کیا, تو معلوم نہیں, اللہ منع کرے اس لیے نہیں کھا رہے. اگر وہ تمہیں کھا لیے ہمیشہ تمہیں جنت میں رہتے. اللہ تم نے ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا, اس لیے وہ چیز کھونوں کو بولا تمہیں کھا لو ہمیشہ جنت میں رہ جاتے ہیں. اب عورت تو عورت ہوتی ہے, اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے چلو کھا لیتی ہوں. خود بھی کھائی, آدم علیہ السلام کو بھی کھلائی. اس لیے جس گھر کی عورت بنتی ہے نسلیں بنتی ہیں. مرد بنا فرد بنا, عورت بنی نسلیں بنی. آج ہمارے بچے بے دین ہیں ہمارے بے دینی کی وجہ سے. اگر مائیں بہنیں یہ ٹھان لیں کہ ہم دیندار بنیں گی, ان کے گھروں میں ان کے گود میں پلنے والے بچے بختیار کاکی بنیں گے, خواجہ معین الدین چشتی بنیں گے, عبد القادر جیلانی بنیں گے. بس ٹھان لینے کی ضرورت ہے. تو خود بھی کھائے, آدم علیہ السلام کو بھی کھلائے, جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں آنا پڑا. بہت روئے آدم علیہ السلام, دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک روئے. اتنا روئے پوری دنیا کے لوگوں کا رونا جمع کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا, اتنا روئے. اس کے بعد میں ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میرے گناہ کو معاف فرما, میری غلطی کو معاف فرما. جیسے ہی یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے کی, اللہ نے کہا اے آدم تمہیں کیسا معلوم کہ محمد مجھے سب سے پیارے ہیں, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام بولے اے اللہ جب تمہیں مجھے بنائے اور میرے بدن میں روح پھونکے اس وقت میں نے سب سے پہلے عرش کو دیکھا. کسے دیکھا؟ عرش کو دیکھا. عرش اللہ کی کرسی کو کہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اللہ اس عرش پر اس کرسی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جان گیا کہ اللہ اگر آپ کسی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے کہا اے آدم تم نے سچ پہچانا, تم نے صحیح کہا. اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ بناتا. میں نے دنیا کے نظام کو بنایا, دنیا کو بنایا, تمہیں بنایا تو میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے صدقے میں بنایا ہے. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. 12 ربیع الاول کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسے ہم سنتے ہیں, مگر صحیح قول 9 ربیع الاول اگر جو بھی ہو یہ مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیرت النبی کے نام سے
اس کو نام دیا جاتا، مگر جیسے میں سوچ کر آیا تھا ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا گیا، نعتوں کو بھی پڑھا گیا، بڑی خوشی ہوئی۔ معزز حضرات اور خواتین، میری مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو بیکار ضائع نہ کریں، یوں ہی برباد نہ کریں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ایک مقصد دے کر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے، دریا کی، درختوں کی، پتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ واقعی صحیح ہے، بس اتنی جہالت نہیں تھی، اس سے اور آگے جائیے تو لوگ لوگوں کی پوجا کیا کرتے، عورتوں کو اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھتے، اور اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، لڑکی پیدا ہو جاتی، اسے زندہ لے جا کر زمین میں دفنا دیا جاتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، نبوت سے پہلے کا یہ عالم تھا۔ ایک واقعہ بتاتا چلوں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے۔ ایک صحابی جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، اللہ کے نبی بتائیے کیا ایمان قبول کر لینا، مسلمان بن جانے سے اللہ پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہا کہ جیسا بھی گناہ ہو کیا معاف کر دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جیسا بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے نبی جی آپ جانتے ہیں میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ کہا بتاؤ کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبوت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہم بڑی جہالت کے اندر تھے، بڑی گمراہی کے اندر تھے، اتنی گمراہی کہ لڑکی کا پیدا ہو جانا ہم نحوست سمجھتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا مقام دیا نبوت کے بعد میں، کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، عورتوں کی عزت کیا کرو۔ جانتے ہو عورت کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جنت کے لیے تم عبادت کرتے ہو، الجنت تحت اقدام الامہات، وہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے ماؤں کی خدمت کرو، تمہیں جنت نماز پڑھنے کی وجہ سے بعد میں ملے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے بعد میں ملے گی، سب سے پہلے تمہیں جو جنت ملے گی تمہاری ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی۔ یہ مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بتایا ہے، ورنہ دور جہالت کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں۔ بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا اسے زندہ جلا دیا جاتا، شوہر کے ساتھ دفنا دیا جاتا، ایسے حالات تھے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے بھی گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں کہیں گیا ہوا تھا، میری بیوی نے اس بیٹی کو چھپائے رکھا، مجھے بتایا نہیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب میں آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ بچہ پیدا بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ تو میں نظر انداز کر کے خاموش رہ گیا۔ میری بیوی نے میری بچی کو اس کے نانی کے گھر میں رکھ کر پالا اور اس کو بڑا کیا، اتنا بڑا کیا کہ وہ چلنے لگ گئی، توتلی زبان میں بات کرنے لگ گئی۔ پھر میں ایک مرتبہ سفر میں گیا، جب میں سفر سے آیا تو میری بیوی نے اس بچی کو میرے سامنے کر دیا اور بچی کو سکھایا کہ دیکھو یہ تمہارے ابو ہیں۔ بچی بچپن سے اس نے باپ کو دیکھا نہیں تھا، جب بتایا گیا کہ یہ ابو ہیں تو فوراً دوڑ کر جا کر بچی ان کے گلے لگ گئی۔ حالانکہ بچی کو نحوست سمجھنے والے یہ حضرات، مگر جب بچی دوڑ کر گلے لگی اور ابا ابا کہنے لگی، ان کے دل کے اندر محبت جاگ گئی۔ انہوں نے لوگوں کو کسی کو نہیں بتایا کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو چھپائے رکھا۔ وہ جب بھی جاتے آتے سب سے پہلے اپنے بیٹی کو ملتے، اسے پیار کرتے، اسے محبت بھری باتیں کرتے، توتلی زبان میں ہنسی مذاق کرتے، ان کا سارا غم بھول جاتا، تمام پریشانیوں کو بھول جاتے۔
मोहब्बत कभी छुपती नहीं है, छुपाने से उसका पता चल गया। अबू जहल जो सख्त दुश्मन इस्लाम था, उसने एक मर्तबा बीच रास्ते में रोका और कहा कि फलाने पता चला है कि तेरे घर में बेटी हुई है, तूने दफनाया क्यों नहीं? ये खामोश रह गए। कहने लगे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बच्ची है। कहने लगा कि अगर कल तक वो बच्ची तुम्हारे घर में नजर आई, तुम्हें, तुम्हारी बीवी को, पूरे खानदान को जलाकर राख कर दिया जाएगा, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। वो सरदार था, मक्के का सरदार था अबू जहल। तो इनके दिल में डर पैदा हो गया कि अगर मैं बच्ची की मोहब्बत में आता हूँ, बच्ची तो मरेगी मरेगी, मैं भी मर जाऊंगा, मेरी बीवी मर जाएगी, पूरा खानदान मर जाएगा, तमाम को ये लोग मार देंगे। अब क्या किया जाए? अपने आप को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए इन्होंने बच्ची की कुर्बानी देना मंजूर कर लिया और कहा कि कल तक मैं अपनी बच्ची को जिंदा दफना दूंगा। अबू जहल ने कहा मैं जायजा लूंगा, घर में आकर देखूंगा, अगर बच्ची नहीं तुम्हारी खैर नहीं। ये सफर में गए, सफर से वापस आए और आकर बीवी से कहा कि अपनी बेटी को तैयार करो, क्योंकि बीवी को पता नहीं। बीवी ने देखा कि बाप बेटी से मोहब्बत कर रहा है, डर निकल गया था, क्योंकि बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत को माँ ने देखा था। माँ ने शौहर पर भरोसा करके बेटी को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए और शौहर के हवाले कर दिया, बाप के हवाले कर दिया। वो सहाबी कहते हैं, ऐ नबी जी, मैं मेरी बेटी को लेकर चला, जाते जाते मैंने फावड़ा लिया, पिकासी ली, ताकि मैं गड़ा खोदूं और अपनी बच्ची को जिंदा दफना दूं। मेरी बच्ची खुशी में मेरे साथ जा रही है कि अब्बा आज मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, अब्बा आज मुझे फिराने ले जा रहे हैं। और मैं चलता रहा। मेरी बेटी कभी मेरे आगे आती है, कभी मेरे पीछे आती है और कहती है अब्बा हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, मगर मेरी बेटी को पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। ऐ नबी जी, मैं बेरहम बनकर अपनी बच्ची को लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मैं जंगल में गया, बीच जंगल में गया और एक जगह जाकर रुक गया। बेटी ने पूछा अब्बा क्यों रुके हो, क्या मामला है? मैंने कहा कोई मामला नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। ये कहकर मैं गड़ा खोदने लगा। क्या करने लगे? गड़ा खोदने लगे, खड्डा खोदने लगे। तो सहाबी फरमाते हैं जब मैं फावड़ा जमीन पर मारता, मिट्टी मेरे दाढ़ी में आकर घुस जाती, वो बच्ची दौड़ती हुई आती और दाढ़ी को हलाकर उस मिट्टी को गिराती और अपने नए कपड़ों से मेरे पसीने को पोंछती, मगर मेरे दिल में रहम नहीं आया। मेरा दिल सख्त बन चुका था, मेरा दिल पत्थर का बन चुका था। मैं गड़ा खोदता रहा, यहाँ तक कि मुझे यकीन हो गया कि इस बच्ची को मैं अब दफना सकता हूँ। मेरी बच्ची बार बार मेरे दाढ़ी से मिट्टी को हटाती रही, मेरे सर से मिट्टी को हटाती रही, मुझे रहम नहीं आया। मैंने जब गड़ा मुकम्मल हो गया, अपनी बेटी को बुलाया, बेटी दौड़ते हुए आकर गला लगना चाह रही थी, मैंने दूर से उसे धक्का देकर गड़े में गिरा दिया। बच्ची रोती हुई, तड़पती हुई, तिलमिलाती हुई गड़े में गिर गई। जब वो गड़े में गिर गई, उसे पता चल गया, छोटी बच्ची थी, मौत हर एक को एहसास दिला देती है। वो समझ गई कि अब मेरी मौत आ गई है, अब मेरा बाप मुझे जिंदा दफना देगा। वो कहने लगी अब्बा जान मैंने क्या किया है, आप मुझे क्यों मार रहे हो, आप मुझे जिंदा क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? क्या मेरी यही गलती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? क्या मेरी यही गलती है कि मैंने लड़की होकर जन्म लिया है? क्या मेरी यही गलती है कि मैं औरत हूँ? आप मुझे क्यों दफना रहे हो? मगर वो सहाबी कहते हैं मुझे रहम नहीं आया। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं उस पर मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज मेरे कानों में आना बंद हो गया। मैंने गड़े को लेवल किया और बगैर आंसू का कतरा बहाए अल्लाह के नबी मैं वापस आ गया। ये सुनना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और कहे कि तुमने क्या कर दिया। मगर जब इंसान कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। वो सहाबी पूछने लगे कि अल्लाह के नबी क्या मेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए कहा तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मगर अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह ने माफ कर दिया है, तौबा करो। और औरतों के मकाम को बताया, ऐ मेरे सहाबा खबरदार कभी अपने माँ बाप को नाराज न करना, कभी अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। आज
देखने में आता है, नौजवान अपने माँ बाप को नाराज करते हैं, माँ का दिल दुखाते हैं। याद रखें, मरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला अजाब में मुब्तला करेंगे। तीन लोग जब उनकी मौत आती है, बहुत बुरी मौत मरते हैं। सबसे पहला वो इंसान जो अपने माँ बाप को नाराज करता है, अगर वो घर में भी मर रहा है तो किताबों में लिखा है कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। यही अल्फाज लिखे हुए हैं किताबों के अंदर। जो अपने माँ बाप को नाराज करता है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। उन्जुर मा काल, वो देखो कि क्या कहा जा रहा है। वला तंजुर मन काल, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि किसकी बात बताई जा रही है। माँ बाप का मकाम, यहाँ तक अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। तुम्हारी माँ बूढ़ी है, उसके आगे चल नहीं सकते, बाप बूढ़ा है, उसके आगे चल नहीं सकते, तुम्हें एक कदम पीछे रहना पड़ेगा अगर अपनी नजात चाहते हो। मगर आज नौजवान बहनें भी, भाई भी अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जिस जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, वो जन्नत माँ के कदमों तले आती है। और एक मर्द को कहा कि जब कोई औरत तेरी माँ बनती है, जन्नत उसके कदमों में आ जाती है। जब कोई औरत तेरी बहन बन जाती है, उसकी शादी करके देगा, तुझ पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और जब कोई औरत तेरी बेटी बनती है, तूने बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह शादी करके दी, तब भी तुझ पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ये मकाम व मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कहा, अल-वालिदु अबवाबिल जन्नह, कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। कभी अपने बाप को भी नाराज ना करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के ये हालात थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इल्म सिखाया, सहाबा को इल्म से आरास्ता और पैरास्ता किया। तब जाकर सहाबा की समझ में आया कि दुनिया की क्या हकीकत है। आज ये तमाम चीजें हमें मालूम नहीं, क्यों? हमने इल्म सीखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। एक बच्ची बड़े बेहतरीन अंदाज में नज़्म कह रही थी, आओ ऐ मुसलमानों मस्जिदें बुलाती हैं। आज मस्जिदें वीरान, बाजार आबाद है, अज़ान होती है, हम घर में बैठे रहते हैं। किसी औरत को फिक्र नहीं कि अपने शौहर को मस्जिद को भेजे। तो कोई मर्द के दिल में ये बात नहीं आती कि अज़ान हो रही है, चलो मस्जिद को जाएं। जब तक इंसान अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर दीन से न जोड़ दे, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। और हमारा मकाम कितना ऊंचा है। सय्यदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बिलाल, तुम्हारा क्या अमल है कि मैं जन्नत के अंदर तुम्हें मेरे से आगे आगे चलता हुआ देख रहा हूँ। हम अपने आप को हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान से कहते हैं, मगर हमारे अमाल क्या है? मस्जिदें वीरान, मस्जिदें बददुआएं दे रही हैं, घरों में नमाज़ें नहीं। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो घर कब्रिस्तान बन जाता है, वीरान बन जाता है। और हर वीराने के अंदर शयातीन बसर करते हैं। याद रखें, आज हालात घर में, वो कोने से क्या की आवाज आई, ये कोने की क्या की आवाज आई, उसके कहीं जाओ, वहाँ से नींबू लाओ, वहाँ से नारल लाओ, नारला की ढीक लगाए तो भी आवाज जाते नहीं, लींबुआ की ढीक लगाए तो भी आवाजा जाते नहीं। आवाजों को निकालना है, घर में कुरान पढ़ो। तुम्हें नहीं आता, अपने बच्चों को सिखाओ और अपने बच्चों को घर में कुरान पढ़ाओ। आज लुटेरे बैठे हुए, लूटने वाले बैठे हुए, आमिला बहुत सारे मिल जाते हैं। जरा सूरह फातिहा आ गई तो मैं भी आमिल हूँ, चारू मैं भी आमिल हूँ। अभी साहब हमारे घर में कहाँ किसी की आवाज आ रही हो, क्या कि चले सर का होता नहीं रात में, हो ऐसा छूता चाइना की आवाज आती। हाँ अभी साहब चाइना की आवाज आती। तुम्हारे बाजू है, देखो पुरुष कराया सो लड़े थे क्या तुम्हें? हाँ परसों एक बार लड़े थे, क्या की जरा कचरा वहां सटी को जरा अड़ई नहीं, जरा अड़ई लड़ाई हुई, वो पुरुष करी। देखो
क्या करना हाफिज साहब, क्या करें, 5,000 रुपए दो, मैं नींबू दम करके देता हूँ, जाको भेलिज के ऊपर नींबू काट डालो। क्या करना, नींबू भेलिज के ऊपर नींबू काट डालो, इधर एक फेंको इधर एक फेंको, हो गया 5,000 जेब में। नींबू का पान बेचारा नींबू बोलता रहेगा, कहीं तो आया मैं दुनिया में, कौन मिले मुझे भी इस्तेमाल करता। नींबू छुड़ा तो नारल, या तो नींबू या तो नारल, या तो नींबू या तो नारल, ये एक परेशानी। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे भाइयों, अगर घर के अंदर सुकून आना है, नमाजों को अपनाओ, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज अदा करो। जैसी भी नमाज आती है वैसी नमाज अदा करो। अल्लाह कहेगा, ऐ फरिश्तों जाओ, मेरी बंदी मेरी मोहब्बत में नमाज अदा कर रही है, उसके घर से तमाम बलाओं को निकाल फेंको। फरिश्ते आते हैं, आकर घसीट घसीट कर ले जाते हैं, घर में काम भी जाने की जरूरत नहीं रहती। आज हर जगह जा रहे हैं, वो पिरा के नहीं जाओ, ये पिरा के नहीं जाओ, वो आप काम करने जाओ, ये आप काम करने जाओ। ये तमाम चीजें अगर इससे बचना है तो नमाज की पाबंदी, इल्म को सीखो, अपने औलाद को इल्म सिखाओ। दुनियावी उलूम सिखा देते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए। हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने। बहुत कम ऐसे माँ बाप हैं जो सोचते हैं मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने। एक बच्ची नात पढ़ रही थी और हिफ्ज का मकाम, हाफिज कुरान का मकाम बयान किया जा रहा था। जिस घर का बच्चा कुरान पढ़ता है, अगर माँ बाप अपने बच्चे को नाज़िरा देखकर कुरान पढ़ाना सिखाते हैं, अल्लाह कहते हैं मेरी इज्जत की कसम है, फरिश्तों गवाह रहो, मैं इसके माँ बाप की मग़फ़िरत कर देता हूँ। नाज़िरा कुरान पढ़ाने पर मग़फ़िरत का वादा है। एक बाप था बहुत शराबी, हमेशा टाइट रहता था, शराब पीकर हमेशा टाइट रहता, मगर मौत के करीब करीब उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, तौबा हो सकता है की होगी, या बात किताबों में लिखा है। उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं, उसकी बीवी हामिला थी, पेट से थी, उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं, अगर लड़का पैदा हो, जो भी बच्चा पैदा हो, बोलने का शुरू करते ही ले जाकर मकतब में जमाना। क्या जमाना? मकतब में जमाना। हम ही क्या करते हैं, हमारा बच्चा बात करने चालू करा गया तो उसे गालन दे, उसे गालन दे, उसे की भी बोलो, उसे आरे बोलो, उसे ये बोलो, उसे वो बोलो। ये हमारी तालीम है। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को गाली सिखाएंगे, सबा उनको गाली दे रहा, आज उनको गाली दे रहा, सबा बड़ाओं का हमने गाली देता, आज उनको गाली दे रहा, हम बड़े मजे से खुश हो रहे कि मेरा बेटा आरे बोला, जाबे बोला, अम्मा भी हंस रही, पापा भी हंस रहा, सब जने हंस रहे, आज हंसो। जब ये बच्चा बड़ा होता तो ना गाली देता, आगे बोलता माँ को, आरे बोलता अपने बाप को, तब हंस कर बताना। तो बाप वसीयत करके मर गया, मौत आई थी, मर गया। उसकी बीवी, शोहर मर गया ना, वसीयत करके बोल को मरा, कम से कम वो तो ख्वाहिश उसकी पूरी करेंगे। बोल को एक फिक्र में थी, और जब भी बीवी सोती हमेशा अपने मर्द को देखती ख्वाब में, बशारत में कि आग के अंदर जल रहा हूँ, रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा, गिड़गिड़ा रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बोल रहा, मगर कौन उसकी मदद करने के वास्ते में तैयार नहीं है। तो जब इसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो उसने फौरन उस बच्चे को, जैसे ही वो बोलने के काबिल और चलने के काबिल हुआ, ले जाकर हाफिज साहब के सामने बिठाया और कहा मेरे बच्चे को कलमा पढ़ाओ, कलमा सिखाओ, कुरान पढ़ाओ मेरे बच्चे को। मेरे शोहर मर गए, उनकी यही तमन्ना थी कि मेरा बच्चा भी कुरान पढ़े। तो हाफिज साहब ने उस बच्चे को आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सिखाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया। पूरा कुरान सिखाए नहीं, पूरा कुरान याद भी दिलाए नहीं, खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाए। बच्चा अपनी तोतली जुबान में जैसा आता, जैसा तैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ को आ गया करके। रात में बीवी सोई, बशारत में देखी उसका मर्द आराम से जन्नत के अंदर टहल रहा, घूम रहा, फिर रहा, बहुत मस्त है। बीवी बोली आदि इतने दिन अंगार में जल रहे थे तुम्हें, आज क्या हो गया, आज तुम्हें इतना अच्छा है ना, खुश हैं, हंस रहे, खेल रहे, क्या हुआ? तो शोहर ने कहा
کہ तूने मेरी वसीयत को पूरा किया, मेरी बात को तूने पूरा किया और मेरे बच्चे को मदरसे में जमा दिया। जैसे ही मेरे बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्लाह ने कहा है फरिश्तों जाओ फलां के बाप को जहन्नम से निकालो। फरिश्तों ने पूछा अल्लाह शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, उसको कैसे निकाले? अल्लाह ने कहा है फरिश्तों निकालो, इसलिए कि उसका बेटा दुनिया के अंदर मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। और जो बच्चा अपनी तोतली जुबान में मुझे रहमान व रहीम कहे, क्या मैं उसके बाप को जहन्नम में जलाऊं? ये मेरे लायक है? जाओ निकालो। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से उसे आजाद करा दिया सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बच्चे के पढ़ने से। इसलिए जिसका बच्चा मकतब में आकर नाज़िरा कुरान पढ़ना सीख जाता है, उनके वालिदैन पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला मरते ही एक ताज उसके सर के ऊपर बड़ा ताज पहनाते हैं, बड़ा ताज पहनाया जाता है। उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाता है। अगर किसी का बेटा आलिम दीन बन जाए, हदीस में आता है अगर किसी का बच्चा हाफिज बन गया, उसके खानदान में 10 या 15 लोग या 20 लोग, मुख्तलिफ रिवायत, जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज दिया जाएगा। और अगर आलिम बन गया 40 लोग या बाद उलमा 40 खानदान फरमाते हैं कि ऐसे 40 खानदानों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, उस एक बच्चे के आलिम बनने की वजह से जन्नत के अंदर दाखिला कर दिया जाएगा। आज बच्चा स्कूल को नहीं गया तो हमें मारते हैं कि स्कूल को नहीं गया, किस साल को नहीं गया, कि पढ़ता नहीं गया, डॉक्टर बनता नहीं गया, इंजीनियर बनता नहीं गया। हमारा बच्चा मकतब को नहीं गया तो मारते क्या? हमें नहीं मारते। मकतब नहीं गया तो गया नहीं, सभा जागते ले, सभा में नहीं बहाना, परसों जागते ले, परसों छोड़ जागते, आइंदा अठवाड़े से जागते, वो अठवाड़े महीने में तब्दील हो गए। देखते देखते बच्चा बड़ा हो गया, अब कहता है कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, बच्चा कुरान से दूर हो गया। ये हमारी बेतवज्जी की वजह से बच्चा हमारा कुरान से दूर हो गया। अब ये जब बड़ा बनेगा, वो मस्जिदों को कहाँ से आबाद करेगा? वो बारों को आबाद करेगा, बार के अड्डे आबाद होंगे, जगह जगह गांजा पीने के अड्डे आबाद होंगे। और वो जब नशे में आएगा तो सबसे पहला वार अपनी माँ पर करेगा या अपने बाप पर करेगा, अपने माँ को जलील करेगा या अपने बाप को जलील करेगा। उसके बाद माँ बाप रो रहे हैं, की वजह यही है कि माँ बाप ने बचपन में उसके दीन की फिक्र नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सिखाया तो वो सहाबा ऐसे बने कि अल्लाह ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी कन्नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। और अल्लाह भी फरमाते हैं यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, मैं उन्हीं को मकाम अता फरमाता हूँ। या अगर जिनको मकाम देना होता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें इल्म की दौलत से नवाजता हूँ। आज हमारे अंदर बेदीनी इसीलिए है कि हमारे अंदर इल्म नहीं है, तो हम अपने अंदर इल्म को सीखने का जज्बा पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मदरसा भी है, बच्चों के लिए मकतब है, औरतों के लिए मदरसा भी है। जाएं, जाकर तालीम हासिल करें, अपना ताल्लुक मसाजिद और मदारिस से जोड़ें, अपने घर वालों का ताल्लुक मसाजिद से जोड़ें। अल्लाह की रहमत जब नाजिल होती है, काबतुल्लाह के ऊपर आती है, वहाँ से सारी मस्जिदों को तकसीम होती है। जो इंसान घर से निकलकर मस्जिद जाता है, नूर की एक झड़ी उसके साथ में उसके घर को आती है। घर आ रहा है तो घर में आ रही है, बाजार को जा रहा है तो बाजार में, खेत को जा रहा है तो खेत में, वो जहाँ जहाँ जा रहा है अल्लाह की रहमत और बरकतें उसके साथ में आ रही है। अगर हमारा ताल्लुक मस्जिद से नहीं होगा तो अल्लाह की रहमत हमारे घरों में नहीं आएगी। जब घरों में अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, फरिश्ते नहीं आएंगे, तो शैतान जरूर आएगा। और जिस घर में शैतान आता है, वहां पर लड़ाइयाँ झगड़े तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, बेबरकती शुरू हो जाती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर एक चीज का इंतजाम किया गया है। मैं तमाम बहनों से कहता हूँ, माओ से कहता हूँ कि अपना ताल्लुक मदरसे से जोड़ें और जितना आपसे हो सके तालीम हासिल करने की कोशिश करें, इल्म हासिल करने की कोशिश करें।
हमारा ताल्लुक मदारिस से हो। और तमाम भाइयों से कहता हूँ, आप काम करते हो बहुत अच्छी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनकी कमाई मालदारों के करोड़ों रुपयों पर भारी हो जाती है। एक सहाबी का वाकया सुनाता हूँ। एक सहाबी, उनके दोनों हाथ नहीं थे, खैबर का मौका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके घर में जो है लाकर दो, चंदा दो, अभी चंदे की जरूरत है। एक सहाबी सुने, उनके दोनों हाथ नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। और वो एक यहूदी के गैर के बाग में गए और जाकर कहा कि मुझे कुछ काम दो। उसने कहा, तुम क्या काम करोगे, तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है। उन्होंने कहा, जो भी काम करो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा कि बावड़ी से पानी निकालना, ले जाकर खजूर के झाड़ को डालना। हो सकता है क्या? हाँ, जरा तुम्हें मदद करो, मैं करने के समय तैयार। क्या मदद करना? मैं बावड़ी के अंदर रस्सी जो रती वो डालो, भरने के बाद जरा तुम्हें खींच को मेरे मुंह में दो, मैं खींच तुम बाल्टी जब ऊपर आती तुम्हें निकाल को बाहर रखो, मैं दाता से ले जाकर वो पानी वहां पर बहा देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। ये सहाबी दांतों के जरिए से रस्सी खींचते रहे, जिसकी वजह से उनके दांतों से खून निकलने लगा और ले जाकर पानी बाल्टी भर भर कर खजूर के दरख्त को डालने लगे। काम हुआ, फजर से जोहर तक ये काम किया। उस यहूदी ने, गैर ने चंद खजूरें दी। वो सहाबी अपने मुंह में लेकर वो खजूरें आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, ऐ नबी जी, आपका एक अदना गुलाम आपकी आवाज पर इससे नहीं हो सकता था, मगर इसने कोशिश की है, मेहनत की कमाई की है, वो कमाई को लेकर आ रहा है, इसके कमाई को सबके कमाई के ऊपर रखा जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए और उसकी खजूरें लेकर सबसे ऊपर रखा। कहा कि अल्लाह, इन खजूरों की बरकत से तमाम माल को कबूल फरमा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक खेत के अंदर आप काम करते हैं, मुबारक हो, अल्लाह आपके कारोबार में और तरक्की दे। मगर जब हम आते आते हमारा ताल्लुक मस्जिद से हो जाए, मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह कहता है, फरिश्तों देखो, तुमने कहा था ऐ अल्लाह भाई इंसानों को क्यों बना रहे हो, वो दुनिया में जाकर फसाद मचाएंगे। फरिश्तों देखो, मेरा बंदा दिन भर काम कर भी घर को जाने से पहले मेरे दरबार में आकर सजदा कर रहा है। हमारा मकाम अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाएंगे, हमारे मकाम को बुलंद करेंगे। ये तमाम चीजें इल्म के जरिए से पता चलती है। आज इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। इल्म ही इंसान की पहचान कराता है, इल्म ही इंसान को बुलंद मकाम पर पहुंचाता है। अगर इल्म नहीं तो दुनिया का इंसान किसी काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम भी अपने आपके लिए तैयार करें कि हम भी दीन सीखेंगे और अपने बच्चों को, अगर एक दिन स्कूल नहीं जा रहा तो जरा छोड़ दो, क्या भी नहीं, मगर मदरसे नहीं गया कभी नहीं छोड़ना। हमारा बच्चा स्कूल के अंदर आगे पीछे करा, रहम कर डालो। नमाज को नहीं गया कभी बख्शना नहीं। नमाज छोड़ा तुम, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद को मारने की इजाजत एक चीज पर है कि जब उनकी उम्र 10 साल की हो जाए। 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करना, 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ने पर मारना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जो इंसान नमाजों की पाबंदी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर को रोशन करते हैं। फरिश्ते दुनिया में जब देखते हैं आसमानों से, तो उनके घर, जिनके घरों में नमाज अदा की जाती है, जिनके घरों में कुरान की तिलावत की जाती है, चमकने लगते हैं। जैसे हमारे सामने सितारे चमकते हैं, फरिश्तों के सामने वो घर चमकते हैं। इसलिए अपने घरों को नमाज के जरिए से सजाओ, रोशन करो। आवाजें आना बंद हो जाती, फिर नींबू की भी जरूरत नहीं, नारियल की भी जरूरत नहीं, बस नमाज का अहतमाम, कुरान की तिलावत। एक आदमी बोलने लगे, हमारी उम्र इतनी हो गई, हम ना कुरान पढ़ने नहीं आता, हमें क्या करना। तो एक मौलाना ने कहा, कोई बात नहीं, कुरान खोलो और कुरान के हरफों के ऊपर उंगली रखो और कहो, ये भी अल्लाह ने सच कहा, ये भी अल्लाह ने सच कहा, ये भी अल्लाह ने सच कहा। इंसान अल्लाह को जैसा याद करता है, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जा रहे थे, एक बुढ़ी अम्मा कट्टे पे बैठ कर बोल रही थी, अल्लाह तू कैसा है कि तू मेरे सामने आए तो मैं कंघी करती थी तेरे सिर में जुआ पड़े से रहे तो जुआ मारती थी। अल्लाह तू कहाँ है कि तू मुझे मिलता नहीं, आए तो मैं अच्छा कंघी करती थी, अच्छा तेरे सर में के जुआ मारती थी। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अम्मा क्या बोल रही, अल्लाह तमाम चीजों से पाक है, अल्लाह के सर में बाल नहीं, जुआ नहीं पड़ते, ऐसा बोलना नहीं, अल्लाह नाराज होता। तो
तो उन्हें बोली क्या बोलना फिर, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और नहीं तौबा 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 तौबा, ऐसा इसके बाद में नहीं बोलती। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, फिर इन्हें बोलते बोलते बिसर गई, क्या बोलना की बोल। अब बोली पहले जैसा याद कर रही थी वैसा याद करे तो गुनाह होता कहते। इन्हों क्या की बोल को गए, वो मुझे बोलने आ रहा नहीं, क्या करना, यादिश करने का नक्का छोड़ो बोल को बैठ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल जाओ और मूसा से कहो, जाकर उस औरत से कहो वो औरत मुझे जैसा याद कर रही थी वैसा ही याद करे। मूसा अलैहिस्सलाम दूर गए हुए थे, वापस आए और कहने लगे अम्मा तू जैसा अल्लाह को याद कर रही थी वैसा याद कर, तेरा वैसा याद करना भी अल्लाह को पसंद है। इसलिए हमें नहीं आता कोई बात नहीं, कोशिश करें हाफिज साहब के पास जाकर, अगर फिर भी नहीं आ रहा कुरान खोलकर 15 मिनट कम से कम बैठे और कहें अल्लाह ने ये भी सच कहा, अल्लाह ने ये भी सच कहा। एक इंसान कुरान पढ़कर जो नेकियां नहीं कमाएगा, आप उंगली रख रख कर उतने नेकियां कमा लेंगे। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत बड़े मेहरबान है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन पर कायम रखे। और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ यहाँ के जिम्मेदारों को कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तमाम गाँव को एक जगह जोड़ा और बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई का काम किया कि बच्चे आकर उन्होंने अपने प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा गाँव जमा है। अल्लाह को भी प्यार आ रहा है। मुझे मालूम है भूख भी लगी है दिल में, कब तो बंद करता रहेगा इन्हें, कब तो बंद करता रहेगा इन्हें। हमारी एक आदत बड़ी खराब, सामने मैं का या तो क्या विदिस्ता नहीं, सामने मैं का है तो क्या विदिस्ता नहीं, मगर मुझे मालूम है कि तो मुझे भूख लग रही, ठीक है तो मुझे भूख लग रही, मैं भी दोपहर से भूखा हूँ। मैं सोचा था लाते लाते पहले इन्हें खाना खिलाते रहेगा, बाद चाय देते रहेगा, बाद में बयान को बिठाते रहेगा। गए तो इन्होंने लगा को नमाज पढ़ाओगे, नमाज पढ़ाते ही लगा को इज्जत से बिठा डाले, खाली गिलास पानी दिए, उसके बाद में क्या भी नहीं, तुम्हारी ज्यादा मुझे भूख लग रही। इंशाल्लाह मामला खत्म है। यहाँ से एक इरादा करके जाओ कि हमारे हर घर का बच्चा उसका ताल्लुक मस्जिद से होगा। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह तमाम इरादा करें, हर घर का बच्चा, हमारे हर घर की बच्ची का ताल्लुक मदरसे से होगा और हमारे हर घर का मर्द उसका ताल्लुक मस्जिद से होगा। जब भी और मर्दों से कहता हूँ सुबह सुबह हम काम को जाते हैं, जाने से पहले 2 रकात फर्ज नमाज सुबह की अदा करके जाएं। अल्लाह फरमाता है जो इंसान सुबह की फर्ज की नमाज पढ़ लेता है 2 रकात, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, ईमान का झंडा। अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों जाओ इसके पीछे, ये जहाँ जहाँ जाता है तमाम चीजों से इसकी इबादत करो, इसके कामों में मदद करो। और अल्लाह मदद कराते हैं फरिश्तों के जरिए से। और जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों आ जाओ, उसका साथी शैतान है, उसके काम में मदद करने वाला शैतान आता तो ये कुछ वहां से आवाज आ रही नींबू काटो, क्या से आवाज आ रही नारियल गड़ाओ, ये दिला में ख्याल आते हैं। इसलिए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा मैं यहाँ के जिम्मेदारों से, मसाजिद के और मदरसे के जिम्मेदारों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को लगा कर यहाँ पर बिठाया। बोलना भी नहीं आता मगर इनका ये बड़ेपन कि उन्होंने बोले तुम्हें आओ, क्या बोलना है बोलो, न तो कम से कम हंस को जाओ, न जो रो को जाओ, क्या तो कर को जाओ, आओ गए। फिर उनके बुलाने पर बड़े तो बड़े होते हैं, मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चों का प्रोग्राम सुना, बड़ी खुशी हुई और मुझे भी चंद बातें करने का मौका मिला और आपको भी चंद बातें सुनने का मौका मिला। इसलिए अब के बाद में हर एक इस बात का अज़म लेकर उठना, कल को भी हाफिज साहब लकड़ी लेकर नहीं आना, तुम्हारे बच्चे को भेजो, तुम्हारे बच्चे को भेजो, बोल को हमें सुधर जाना मौत आने से पहले। आखिरी बात बोल कर बात खत्म कर दूं मैं, मौत का कोई भरोसा नहीं। पहले मौत बोल को आती थी, कैसे बोल को आती थी, लोग बुढ़े होते, बुढ़े होने के बाद में बीमार पड़ते, उसे आराम नहीं करते, उसे आराम नहीं करते, उसे आराम नहीं करते, इतना गरगरा लगा करते। गरगरा भी लग को 1 महीना रहता उन्हें जिंदा, गरगरा लग को भी 1 महीना जिंदा रहता, बाद में मालूम पड़ता उन्हें मरा करते। अयो मरे से अच्छा हुआ, उन्हें इतने दिनों से बीमार रहता, देखो उन्हें मरे से अच्छा हुआ करते। तब बोल को आती थी मौत, अभी मौत भी शॉर्टकट आ रही।
निकले घर से, ठोकर लग को गिरी, मर गया। अब भी ना खाना खा को गया उन्हें, हाँ ठोकर लग को मर गया। शॉर्टकट, मौत भी शॉर्टकट। मौत कब आती भरोसा नहीं है, मौत कब आती भरोसा नहीं। मैं हमेशा एक वाकया बताता हूँ मच्छी का। बताऊँ क्या भाई, सब जने सुन को सुन हो गए रहेंगे। बताऊँ क्या, बोलो बताओ, कह दो बता तुम, नहीं कह तो कितने बार बोलते छोड़ो हजरत के निकाल को बता दे। सुनने के वास्ते तैयार हैं? बोलो, मैं बोलने लगा तो फजर हो जाती, तुम कौन भी नहीं रहते, बाद में अकेला जो बैठना सो। एक आदमी मच्छी पकड़ने गया, मच्छी पकड़ने जाने वाला क्या करता, कीड़े कीड़े लेको गल को लगा को ले जाको क्या करता, उन्हें तलों में गल डालता। गल डालते ही मच्छा बहुत चालू, तलों में यो किनारे क्या भी पड़ा, बोले तो किनारे की मच्छी को मालूम पड़ता है आज दावत है, चलो 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 दो दावत है, बोल सब जने भाग को आ जाते हैं। तो जैसे ही डाली पूरे मच्छा भाग को आने लगे। एक बुढ़ी मच्छी आती कहती, जरे बुढ़े जो उम्र वाले होते हैं उन्होंने बहुत पते की बातें बोलते हैं, उनकी बातें सुन लेना, बहुत पते की बातें रहते हैं उनकी। तो एक बुढ़ी मच्छी रहती है उसमें, उन्हें बोलती बेटी कहाँ जा रही, उन्हें बोलती दावत है, तुम्हें मालूम नहीं क्या दावत खाने जा रही। अयो माँ तुम्हें दावत खाने जाओ ना को, दावत खाने गए साले कौन भी वापस आए नहीं, दावत खाने गए साले कौन भी वापस आए नहीं, खाने जाओ ना को कि वो क्या होता, ए वो दावत नहीं, वो मौत हो तुम्हारी। क्या है वो? मौत है वो कैसा मौत माँ, वो हमने तो दावत नजर आ रही है। वो दावत के पीछे काटा है, ऊपर एक घंटे से बैठा, कब लगती मच्छी, कब लगती मच्छी को तुम्हें खाए गए तो काटा अटकता हलक में, तुम्हें यहाँ पानी में तड़पते उसे मालूम पड़ता, एक झटका मारता तुम्हें पानी से निकल कर जमीन पर गिर जाते हैं। अभी इसके इंतजार में इसके जोर बैठ को मसाला पीस को खट्टा कला को गया ही नहीं, मच्छी लाने कहूँ से आता कि भाड़ा खट्टा भी जल को गया, अब भी आया नहीं मसाला तैयार कर को उन्हें बैठे और बच्चे नाच रहे, अब्बा मच्छी लाने गए, अब्बा मच्छी लाने गए बोल को उन्हें ले जाकर औरतों के हवाले करता। औरतों के दिल में जरा भी रहम नहीं, तुम्हारा चमड़ा निकाल को, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर को, सल्ला बना को, फ्राई कर को, एक दस्तरखान लगा को, छोटे बड़े पूरे मिल को 32 जाता में तुम्हें चबा को हजम कर डाल देंगे। अब एक मच्छी बोली अच्छा इतना सब है, देख का तुम खड़ो कई साली की पूरा तलों चक्कर लगा कर दी, क्या करती है पूरा तलों चक्कर लगा कर दी है। आगो बोलती अरे सुनो सुनो, इन बुड्ढी बोल को समझे थे हम, मगर बहुत होशियार है इन्हें, ये बुड्ढी बहुत होशियार है कि वो दावत है बोल को हम ही जाते रहे तो इन्हें हमने हटा को खुद खाना चाह रही, देखो बोले तो जरा ऐसे भी देते थे हमें, इन्हें पूरा झड़प निक बैठी, नहीं इसका सुनने का नहीं, जाको क्या करती मच्छी क्या करती खा लेती। अब जैसे ही खाई काटा अटके हालत में अटके तो नहीं तड़पने लगी। अब इन्हें बैठा उंगले को बैठा नहीं पहले तो जोरू क्या बोल रहा है हो गए तो छोड़ती नहीं, खट्टे का क्या करना कहती है, खट्टे की कड़ी खा को भी जमाना हो जाता, खट्टे की कड़ा को भी खा रहे नहीं, अब क्या करना बोल को इन्हें टेंशन में उंगले को बैठा था, धागा हलिया हाँ लगी, एक झटका मारा इन्हें, मच्छी क्या करी पानी से निकल को जमीन पर आको गिरी। अब मच्छी जमीन पर आको गिरी तो क्या खुश होती, क्या हम जमीन पर आई बोल को तड़पती नहीं, तड़पती कई तड़पती बोलो, हमें बोलते पानी नहीं से तड़प रही बोल को, हाँ मच्छी पानी नहीं से तड़पती, मगर जो मच्छी शिकार होती जिसे गल से पकड़ते वो मच्छी पानी के रास्ते में नहीं तड़पती, उसे वो सब बातें याद आते जो उसे पानी में बोली थी बुढ़ी अम्मा, बुढ़ी मच्छी बोली थी नहीं खाओ नको कितना बोले तो सुनी नहीं, जाको खा ली अब भुगत। अब उसे सब बातें याद आ रही, आदमी भी याद आ रहा, बाई को खट्टा पीस को मसाला पीस को तैयार रखी, खट्टा भी रखी, बच्चे नाच रहे गा रहे, तमाम चीजें उन्हें देख ली। अब वो मच्छी जमीन पर गिर को बोलती ऐ इंसान मुझे पानी में ये खाने से पहले बताया गया था, बोला गया था कि न खाओ, मगर मैंने नहीं सुना। ऐ इंसान मुझे माफ कर, एक लम्हे के वास्ते एक सेकंड के वास्ते मुझे पानी में छोड़, मैं सारी जिंदगी भूखी रहता मगर तेरी दावत नहीं खाती। क्या कर दो सारी जिंदगी भूखी रह तू मगर तेरी दावत नहीं खाती, एक सेकंड के वास्ते में पानी में छोड़। कौन तो भी छोड़ते हैं क्या, बोलो छोड़ते हैं क्या भाई, कौन भी छोड़ते हैं, अड़के सुर वाले छोड़ते हैं क्या, कौन भी नहीं छोड़ते। नीली सोच एक मच्छी है खट्टे मिला को खाएंगे बोल को कौन छोड़ने वाला है, तो उन्हें क्या करता नहीं छोड़ता, ज्यादा तड़पने लगी तो मार को उसकी जान निकालते हैं। अब वो तमाम चीजें होती जो उसे पानी में बताया गया, वैसा मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरी माओ तुम्हारा हमारा पूरे दुनिया में बसने वालों का
यही आलम है, यही अंजाम है कि आज हमें बताया जा रहा है कि मौत है, कब्र है, कब्र में 99 हज़्ज़े नाफरमान के लिए तैयार है, जहन्नम तैयार है। मरता है जब इंसान, कोई मर्द हो या औरत, नाफरमान करके, अल्लाह को नाराज करके, रसूलुल्लाह को नाराज करके, जहन्नम कहती है आजा तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। जन्नत कहती है दूर चला जा, न तू मेरे लिए न मैं तेरे लिए। अब तमाम चीजें हो जाती हैं। इंसान जैसे ही उसके सामने मलकुल मौत आ जाते हैं, अब दुनिया का पर्दा उसके सामने से उड़ गया, अब तमाम चीजें आखिरत की दिखाई दे रही। उसे बोलते हैं देखो तुम्हारी बेटी आई, दूध पियो। बेटी से भी दूध पिलाने नहीं, किससे भी दूध पिलाने, बेटी दूध पिला नहीं देखती, दूध भी इधर से जा रहा। बेटा